Dear students of class 12th Business Studies, good afternoon. Our today's topic is scientific management and the principles of scientific management suggested by F.W. Taylor. That is Taylor's scientific management. We can see this is Taylor's scientific management. Before explaining the meaning and the principles of Taylor's scientific management, I will give you introduction regarding the author or Taylor. Name of the writer or this Taylor is F.W. Taylor, or we can say Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor is his full name, and we almost use F.W. Taylor. He was born in 1856 in Philadelphia, USA, and in 1870 he worked in machine making shop. F.W. Taylor worked in machine making shop. Just imagine the famous writer, the scientist, the engineer, and the writer of the management was first of all working in the machine making shop in 1870. In the same year, that is 1870, he became the chief engineer of Midvale Steel Works. Midvale Steel Works is a very famous company in USA, and he was appointed as the chief engineer in that company. Midvale Steel Works, इसका वो चीफ इंजीनियर था 1870 में ही. इसी साल शॉप में काम किया एज ए मैकेनिक, और इसी साल चीफ इंजीनियर सिलेक्ट हुआ एक बड़ी कंपनी में जिसका नाम है मिडवेल स्टील वर्क्स. He worked on many positions in this company, Midvale Steel Works. He observed the job efficiently. In 1903, he wrote books on shop management. Shop management. It will be new conception for you people, but in 1903, F.W. Taylor wrote books on shop management. And in 1910 and 1911, Taylor wrote books on principles and methods of scientific management. Today, we will discuss the scientific management and the principles of this scientific management given by F.W. Taylor. Scientific management means to apply scientific methods in management. Our question starts now. Question will be there. Define scientific management and discuss the principles suggested by F.W. Taylor on scientific management. Scientific management means to apply scientific methods in management. यानी कि साइंटिफिक मेथड्स जब हम अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट में,
that's known as scientific management. It stresses the need for replacing traditional techniques by scientific techniques. ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हमारे पास पुराने मेथड्स थे, जो अपने मेथड्स अप्लाई करते थे, उनको रिमूव करके नए नए साइंटिफिक टेक्निक्स हमें काम में लगाने हैं, मैनेजमेंट में लगाने. साइंटिफिक टेक्निक्स आर अप्लाइड इन मेथड्स ऑफ वर्क, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत है. अब उसको अप्लाई करना है सिलेक्शन प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और जो काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो मेथड्स हमें यूटिलाइज कर रहे हैं, उन मेथड्स को आगे बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत है. जो F.W. टेलर है, he has suggested the following principles of scientific management. Number 1, replacement of old rule of thumb method. जो ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड अप्लाई किया जाता था पहले काम के लिए वर्कर्स के जरिए, तो उसको अब रिप्लेस करना है इनटू, अब लाना है हमें साइंटिफिक मेथड्स. थंब मेथड की जगह हमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना है. बिफोर टेलर साइंटिफिक मेथड, वर्कर्स यूज्ड टू परफॉर्म देयर वर्क विथ ट्रायल एंड एरर मेथड्स. दैट इज रूल ऑफ थंब मेथड. पुराना मेथड जो वो कर रहे थे, हम ये काम ऐसे करेंगे, सीधा हो गया तो ठीक है, देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती थी. A worker used to select his own method of work. जिस तरह मन करता था, मशवरा आता था, चाहे गलत हो जाए, कुछ हो जाए, करते थे अपने मन के मुताबिक. Planning and doing were done by the worker himself. Planning अलग चीज है, doing अलग चीज है. Planning है मैनेजमेंट का काम और doing है एम्प्लॉइज का काम, वर्कर्स का काम, सबॉर्डिनेट्स का काम. और ये प्लानिंग डूइंग, इसमें मैनेजमेंट वर्कर की में कोई डिफरेंस नहीं थी. ये एक ही आदमी करता था, वही टॉप लेवल का था, वही वर्कर भी था. तो हैफाजर्ड मैनर में काम होता था, सक्सेसफुल ज्यादा नहीं होता था. टेलर साइंटिफिक मेथड सेपरेटेड प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. यानी प्लानिंग अलग होगी, डूइंग अलग होगी, मैनेजमेंट अलग हुआ, एम्प्लॉइज वर्कर्स अलग हो गई. तो एक सिनेरियो चेंज हुआ इस मैनेजमेंट का. उसके बाद जो उसका दूसरा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो टेलर ने दिया है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. साइंटिफिक सिलेक्शन, एक तो होगी सिलेक्शन और ट्रेनिंग वर्कर्स के लिए, जो यूजुअली मैनेजमेंट में हुआ करता था. लेकिन अब साइंटिफिकली हमें ये सिलेक्शन भी करनी है, साइंटिफिकली हमें ट्रेनिंग भी देनी है. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. साइंटिफिक मैनेजमेंट stresses to select right people for right jobs. जो जहां मुनासिब हो उसको वहां अपॉइंट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है. जो जिस काम के लायक है उसको वही काम दिया जाता है. The selected persons should be given training as per the need of the job. रिक्वायरमेंट जो है जॉब की, वही ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को. हम किस आदमी को, किस बंदे को किस काम के लिए सिलेक्ट करेंगे और किस किस्म की ट्रेनिंग उसको देंगे, क्या वो कैपेबल है वो ट्रेनिंग रिसीव करेंगे, क्या वो कैपेबल है वो उस काम के लिए जिसको असाइन की जाती है, जिसके लिए वो सिलेक्ट किया जाता है. उसी से कहते हैं कि राइट पीपल एट राइट प्लेसेस, एट राइट पीपल फॉर राइट जॉब. The norms for selection should be scientifically designed. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फ्रेम होते हैं उनको भी अब साइंटिफिकली डिजाइन किया जाए, उनको भी साइंटिफिकली प्रिपेयर किया जाए. सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग पीपल विल प्रूव कॉस्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर सिलेक्शन सूटेबल नहीं होती है, अगर राइट पीपल को राइट प्लेस पर राइट पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया, तो इट विल प्रूव कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
or and loss for the organization. Number third, cooperation between workers and management. Workers और management, boss and subordinates, उन दोनों में एक तालमेल होना चाहिए, cooperation होनी चाहिए. There should be cooperation between management and workers. Management और workers में जब ये दोनों united हो, जब उन्हें एक दूसरे का ख्याल हो, तो organization will be improved and successful. The objectives of the organization will be definitely achieved. Increase in wages is the objective of workers, and increase in profits is the objective of management. Simple. Employees की जो needs हैं वो अगर satisfy हो जाए, वो needs क्या है? Needs हैं उनकी अच्छी खासी सैलरी हो, उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, बेनिफिट्स दिए जाए, और जो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का मकसद भी यही होता है कि उनको मोर एंड मोर प्रॉफिट्स मिले. ये दोनों कैसे हासिल हो जाए? बोथ द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड थ्रू कोऑपरेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, दीज बोथ कैन बी अचीव्ड थ्रू कोऑपरेशन. अगर कोऑपरेशन होगी इनके दरमियान, तो कोऑपरेशन कैसे होगी वो हम आगे वाले प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे. हाँ, नंबर 4, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वर्कर्स को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मैनेजमेंट को अपनी, वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं. द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड इक्वली शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली. अगर ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली, सक्सेसफुली चलाना है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो शेयर की जाए, वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वर्कर्स को अपनी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. देयर शुड बी ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. मैनेजमेंट और वर्कर्स को पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट को क्या करना है, वर्कर्स को पता है इनको क्या करना है, इनका काम क्या है. डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, डिवाइडेड. हमें वर्क जो है वो बांट के रखना है. मैनेजमेंट के लिए कौन सा है प्लान, अगर मैनेजमेंट का काम है, और काम जो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान वर्कर्स का, इसी तरह ये एग्जाम्पल है उसके लिए. मैनेजमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, while workers should be responsible to put the plan into action. जो प्लान है, प्लानिंग है, ये मैनेजमेंट का काम है. वर्कर्स अगर पियोन से लेकर या किसी ये जो बाकी लेवल, लोअर लेवल के जो भी वर्कर्स हैं मैनेजमेंट में, अगर उनमें से कोई जाए तो मैनेजमेंट की बात प्लानिंग के लिए मैं करता हूं, ये करता हूं, वो दैट इज द फेलियर. वर्कर्स को प्लानिंग के साथ टच नहीं करना है, क्योंकि ये जॉब है मैनेजमेंट की. और फिर जो वर्कर्स का काम है उसमें भी मैनेजमेंट को फिर डिस्टर्ब नहीं करना है. जो उन्होंने प्लान दिया है तो वो इंप्लीमेंट करना वर्कर्स का काम है, उनको वो शौक से, खुशी से इंप्लीमेंट करना चाहिए. नंबर 5, मेंटल रेवोल्यूशन. देखिए, जो भी वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेंटली फिट होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, खुश होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए उसका. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी चेंज इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इनका एटीट्यूड सही होना चाहिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पेश आने चाहिए. वर्कर्स शुड बिहेव इन अ राइट वे, इन अ प्रॉपर वे विद द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट also should play a very good role, should behave with the workers properly. Management should solve the problems of workers and workers should perform their duties efficiently. मैनेजमेंट को वर्कर्स का ख्याल रखना है,
उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनके इंसेंटिव्स देने हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी, उनके वेज टाइम पर देने हैं और अच्छे जो उनका हक बनता है वही वेज देने चाहिए। और वर्कर्स को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें काम करना है, जो उन पर फर्ज है एफिशिएंटली काम, अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली परफॉर्म करनी है। 6th, मैक्सिमम आउटपुट। जो आउटपुट है ज्यादा से ज्यादा, एक्चुअली द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट मोस्टली रिमेन्स द प्रॉफिटेबिलिटी और more and more profits to be earned by the company through the workers। तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे हासिल होगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेसेस इंक्रीज इन आउटपुट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है किसका है? टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो उसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट शुड एफिशिएंसी management should introduce latest technology for increasing output। Management should introduce latest technology for increasing output। आउटपुट को बढ़ाने के लिए उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है। The workers should increase their efficiency so that more production is possible। यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना है? एफिशिएंटली काम करना है, खुशी खुशी काम करना है। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द वर्कर्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। ये तो पहले ही डिस्कस हुआ है कि इंसेंटिव्स, सैलरी, वेजेस, नीड्स जो हैं वर्कर्स की वो फुलफिल करनी चाहिए मैनेजमेंट को, ताकि वो एफिशिएंटली काम करे और आउटपुट इंक्रीज हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक it's enough for today। We have completed the question, discussed it fully। You can have the screenshot of this question so that you may practice it from time to time। I will be back soon with the next topic। Take care, have a nice day।